Hello friends, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. So dear friends, this is the day 3 video and basically we are going to continue new series. In that series we are going to cover mock test. In that mock test you are going to learn what are the concept, and I will try to include all the previous year question and the multiple choice questions, because as we all know in the next month we are going to have our examination. So let us do our all the best and try hard so that we can clear our examination. So let us start. What you need to do is you just give me the answers in the chat box, in the comment box, and at the end just write in the comment section कि वो कितने questions आपके सही हो रहे हैं. Okay, so this is the first question. Which of the following is an example of spooled devices? A line printer used to print the output of a number of jobs, a terminal used to enter input data, a secondary storage device in a virtual memory system, a graphic display devices. I am just pausing for a moment so that you can learn yourself, you can read yourself and just give the answer. So let us see the answer. Answer is what? Answer will be option 1. So basically this is the basic question which I have taken from GATE 1996 and see these all questions are expected for your UGC NET, correct? तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि what is spooling device. So I have written here spooling means what? Simultaneously peripheral operations online. तो यहाँ पे आपको नोट मेकिंग करना है. नोट मेकिंग करना है मीन्स व्हाट कि आपका ये जो स्पूल वर्ड है ये पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एज यू ऑल नो कि इन ICT दे आर आस्किंग एक्रोनिम्स, तो आपको ये याद होना चाहिए बिकॉज वो इतना कन्फ्यूजिंग एक्रोनिम देंगे आपको. यहाँ पे साइमल्टेनियसली की जगह कुछ और वर्ड दे देंगे, पेरिफेरल के लिए की जगह पे कुछ और दे देंगे, तो आपको याद होना चाहिए साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन. Okay, spooling is what? It is a process in which data is temporarily held to be used and executed by a device, program or a system. Data is sent to and stored in the memory or other volatile storage until the program and computer request it for a execution. तो you can easily understand spooling by the concept of what? Printer. जो आपका प्रिंटर होता है, करेक्ट? प्रिंटर में आप क्या करते हो? इनपुट देते हो, उसके करस्पॉन्डिंग वो आपको आउटपुट करेक्ट देता है. तो यहाँ पे स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट आपके प्रिंटर से ही आया है. बेसिकली जो हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, तो ये वहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया है. नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन इज which of the following is an example of spooled device? Just read the option by yourself and try to give the answer in the comment section. Now let me explain question. Which of the following is an example of spooled device? अभी हमने spooling device का आपको definition बताया. Question is the terminal used to enter the input data, an output device used to print the output of number of jobs, the secondary device in virtual storage system, the swapping area on the disk used by swapper. तो इट्स वेरी इजी. आंसर विल बी 2 बिकॉज मैंने अभी बताया कि आपको स्पूलिंग किससे याद करना है? प्रिंटर से, करेक्ट? तो प्रिंटर इज अ डिवाइस जिसमें नंबर ऑफ जॉब्स आप इनपुट देते हो और उससे करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट डिस्प्ले होते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following features will characterize an operating system as multi-programmed operating system? सो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. लेट मी एक्सप्लेन योर क्वेश्चन. आपको यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो व्हाट वाज द क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन था कि आपको फीचर्स बताना है किसका? मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का. तो व्हाट इज मल्टी प्रोग्राम्ड? मोर देन वन प्रोग्राम मे बी लोडेड इनटू मेन मेमोरी एट द सेम टाइम फॉर एग्जीक्यूशन. या इट्स करेक्ट. इफ अ प्रोग्राम वेट्स फॉर सर्टेन इवेंट अनदर प्रोग्राम इज इमीडिएटली scheduled for a execution. It is also correct. If a execution of a program terminates, another program is immediately scheduled for the execution. This is also correct. But option यहाँ पे B correct है. B को करेक्ट है बिकॉज आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना था और समझना था. क्वेश्चन आपका C क्यों रॉन्ग है? ठीक है, तो पहले मैं आपको ये एग्जांपल समझा देती हूँ डियर फ्रेंड्स कि मल्टी प्रोग्राम क्या होता है. लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रही हूँ ऑन माई मोबाइल और ऑन माई लैपटॉप. साथ में मेरे कई सारे टैब्स ओपन हैं. आप म्यूजिक भी सुन रहे हो, आप वीडियो भी देख रहे हो, मूवीज़ भी देख रहे हो, PPT भी बना रहे हो, वर्ड फाइल भी बना रहे हो. इट मीन्स कि आपके सिस्टम में एक ही प्रोसेसर है बट यू आर डूइंग मल्टीपल प्रोग्राम्स. तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एट अ टाइम इन अ सेम टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन यू आर परफॉर्मिंग सो मेनी प्रोग्राम्स. तो हेंस 1 आपका ट्रू हो गया.
सेकेंड ये बोल रहा है कि अगर इफ अ प्रोग्राम वेट्स फॉर सर्टेन इवेंट सच एज इनपुट आउटपुट अनदर प्रोग्राम इज इमीडिएटली शेड्यूल फॉर द एग्जीक्यूशन। एज फॉर एग्जाम्पल, अभी आप कुछ भी इनपुट नहीं दे रहे हो, आप माउस को क्लिक नहीं कर रहे, कीबोर्ड को क्लिक नहीं कर रहे, बट इमीडिएटली जैसे ही आपने माउस को क्लिक किया वो सेम इनपुट को ले लेगा, तो ये तो ट्रू है। अब ऑप्शन सी यहाँ पे क्यों रॉन्ग है? बिकॉज दिस इज द वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। इफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम टर्मिनेट्स अनदर प्रोग्राम इज इमीडिएटली शेड्यूल फॉर द एग्जीक्यूशन। बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, बट क्वेश्चन आपको क्या पूछा, बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन उन्होंने मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन जो 3 है वो 3 ऑप्शन आपका सिंगल प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमारा सिस्टम आइडियल है तो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में भी आप इमीडिएटली लोड करते हो। हेंस अगर मल्टी प्रोग्राम के बेसिस में पूछा है तो आपका ऑप्शन ए एंड बी ही ट्रू होगा। तो इट मीन्स कि क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन से बहुत ही ओपन माइंड होकर सॉल्व करना है, बिकॉज वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं। नाउ अब मैंने यहाँ पे आपको साथ में कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश की है, सो दैट कि आप एक वीडियो अगर देख रहे हो तो आप पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। द बेसिक आइडिया ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज इट कीप सेवरल जॉब्स इन मेन मेमोरी साइमल्टेनियसली। एडवांटेज क्या हो जाएगा? हाई एंड एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन, लेस रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम फॉर टर्न अराउंड टाइम. In most of the application, multitask are running and multi-programming system better handle this type of application. Several processes share a single CPU. So this is what multi-programmed operating system के features है, and इसके features पे ही आपको बहुत क्वेश्चन ट्रिकी पूछते हैं. So आपको ये सारी चीज़ें समझना चाहिए. ओके, नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज? इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोग्राम अ सिस्टम बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल हैंडलिंग. To accommodate many jobs in main memory, complex memory management is required. So these are the disadvantage of multi-program system. Now moving to the next question, which I have taken from UGC NET December 2008. What will be the answer? In which of the following ready to execute process must be present in RAM? और ये जो मैं आपको ऐसा लग रहा हो कि दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आपको पेपर 1 में भी आईसीटी में क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी आ रहे हैं. तो आपके ये जो बेसिक्स होते हैं ना, आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेट अस सी. आंसर विल बी व्हाट? ऑल ऑफ द एबव. मतलब जो रेडी टू एग्जीक्यूट हमारा सिस्टम होता है उसमें मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्राम और मल्टी टास्किंग, वो तीनों ऑप्शंस को होल्ड करता है. सो दिस वॉज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 का वो अटेम्प्ट करिए. दिस इज वेरी रिसेंट क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट 2015. मैं जैसा बोल रही थी कि आपको बेसिक्स आना चाहिए, बिकॉज बेसिक से भी रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस बहुत पूछे गए. सो बेसिकली ये मैचिंग का क्वेश्चन है. स्पूलिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम. तो आपको इसको मैच करना है. तो क्या होगा इसका आंसर? मैचिंग का बेस्ट तरीका ये होता है एग्जामिनेशन में सॉल्व करने का कि आपको एलिमिनेट करना है और 1 से 2 ऑप्शंस को मैच करना है. एज फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स व्हाट? जो कि जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होगा कंप्यूटर में. तो डी का ऑप्शन 2 होगा. तो अगर मैं डी को देखूँगी तो डी का ऑप्शन क्या है? सिर्फ एक ऑप्शन से आपका सारा आंसर सॉल्व हो रहा है. सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशंस. करेक्ट, कि आपको सारे ऑप्शंस रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है. इफ़ आई एम 101% श्योर कि मेरा ये ऑप्शन का ऑप्शन 2 होगा, तो मुझे यहाँ पे बस मैंने ये चेक कर लिया और यहाँ से क्लियरली हमने आंसर्स को मार्क कर लिया. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? द नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, रेडी क्यू, इनपुट आउटपुट क्यू, या नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी. आई होप आपने आंसर समझ लिया होगा. द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी. ओके, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे शेड्यूलर का कॉन्सेप्ट होता है. तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग किस में सबसे हाईएस्ट होता है. आइदर वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में होगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में होगा, या फिर आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर में होता है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे मैंने आपको एक समरी प्रोवाइड किया है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टास्क शेयरिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग. तो यहाँ से देखिए, मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली ऐसा कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना. मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे हमने अभी देखा कि देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स विच आर रनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम. मल्टी प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा? जहाँ पे आपके 2 से ज़्यादा सीपीयू है. करेक्ट, मतलब आपके मल्टीपल प्रोसेसर है. मल्टी प्रोग्रामिंग में आपका प्रोसेसर एक होता है,
वहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स रन होते हैं, बट मल्टी प्रोसेसर मतलब मल्टीपल प्रोसेसर्स आर एग्जीक्यूटिंग। और मल्टीटास्किंग क्या है, वो एक लॉजिकल एक्सटेंशन होता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग का। और इस स्टेटमेंट पे भी इसरो में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो दिस बेसिक थिंग्स यू मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड। ना इस स्लाइड से मैंने आपको डिफरेंसेस भी प्रोवाइड करने की कोशिश की कि मल्टी, जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स पैरेलल प्रोसेसिंग होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स कि आप इसमें स्विच कर सकते हो। तो जो कंटेक्स्ट स्विच का कॉन्सेप्ट आता है वो आपके मल्टी प्रोग्रामिंग में आता है, सो दैट कि आप इफेक्टिव यूज़ कर सको अपने CPU का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि मल्टीटास्किंग मैंने क्या बताया, इट इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग। इट मीन्स जो मल्टी प्रोग्रामिंग है वो कंटेक्स्ट स्विचिंग के साथ हम यूज़ करते हैं, जो हमने भी प्रीवियस देखा। बट मल्टीपल टास्किंग इज बेस्ड ऑन द टाइम शेयरिंग अलॉन्ग साइड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो यहाँ पे टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट में आप स्विच करते हो डिफरेंट प्रोसेसर्स के बीच में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप जो मैंने आज क्वेश्चंस लाया है यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, दिस इज द सिक्स क्वेश्चन। तो जस्ट टेल मी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। एंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरीके के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चन अगर आपके पेपर 2 में भी आते हैं एंड आपका पेपर 1 में भी इससे मार्क्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं जो आपको ऑलमोस्ट आपके 6 मार्क्स इस टॉपिक से कवर अप होते हैं। तो द सिंगल एम ऑफ आवर चैनल इज़ कि हम हर वीडियो में ये कोशिश करते हैं कि आप कुछ अगर नया नहीं सीख रहे हो तो एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं रिवीजन करो, बिकॉज आप जितना रिवीजन करोगे आप उतने ही अपने गोल की तरफ, टारगेट आपका जो भी टारगेट है, आपका जो भी गोल है, आप उसको अचीव कर सकोगे। एट लास्ट अगर मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप हमें मेल कर सकते हैं अगर आपके जो भी डाउट्स है, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम डिस्कशंस भी करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एवरी इवनिंग वी आर प्लानिंग टू इस तरीके के मैं मॉक टेस्ट लेके आऊँ। तो आज का कैसा लगा आपको इनिशिएटिव ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी।